اردو زبان سیکھنے کی جانب پہلا قدم۔ جو بچے اردو میں کمزور ہیں یا جو لوگ بالکل اردو نہیں جانتے اور وہ لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک اپنے چینل FA آن لائن کلاسز میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کی مدد سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت آسانی کے ساتھ اردو سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے اردو کے الف سے یہ تک کے حروف کی پہچان کرائی، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے ہندی میں بتایا، اور کون سے حرف کا کیا مخرج یعنی کس آواز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ہندی میں بتایا۔ اس کے علاوہ ہر حرف کی مختصر یا ملمہ شکل کی بھی پہچان کرائی جو لکھنے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں آپ نے الف، جو کہ اردو زبان کا پہلا حرف ہے اور اس کی کافی اہمیت بھی ہے، اس کا استعمال مد کے ساتھ کس طرح کیا جاتا ہے، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ کس طرح کیا جاتا ہے، دیگر حروف کے ساتھ جب الف کو ملایا جاتا ہے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور دو حروف کو ملا کر جو الفاظ بنائے جاتے ہیں، تین حروف کو ملا کر جو الفاظ بنائے جاتے ہیں، چار حروف اور پانچ حروف کو جو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، انہیں کس طرح لکھا جائے گا اور کس طرح پڑھا جائے گا، یہ سب سیکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ الف کے علاوہ دیگر حروف کے اوپر جب زبر لگایا جاتا ہے تو اس کی کیا آواز یعنی کیا ساؤنڈ نکلتا ہے، اور جب انہی حروف کے نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے تو کیا ساؤنڈ بن جاتا ہے، اور جب ان تمام حروف کے اوپر پیش لگا دیا جائے تو پھر اس کی ساؤنڈ یعنی آواز کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم سیکھیں گے دو چشمی ہے کا استعمال۔ یہ دو چشمی ہے جب مختلف حروف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو کیا آواز نکلتی ہے۔ ایک حرف ہوتا ہے نون نوننا۔ نون نوننا اس حرف کو کہتے ہیں جو ہوتا تو نون ہے لیکن اس نون میں نقطہ نہیں ہوتا، لیکن یہی نون نوننا جب ملمہ شکل میں لکھا جاتا ہے تو اس میں نقطے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آج ہم بتائیں گے اور مثالیں دے کر بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، تو آئیے سب سے پہلے ہم زبر کا استعمال دیکھتے ہیں۔ مختلف حروف کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی کیا آواز ہوتی ہے اور کیا شکل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اردو کا پہلا حرف ہے الف۔ الف کے اوپر جب زبر لگایا جاتا ہے تو وہ چھوٹے آ کی آواز دیتا ہے۔ بے کے اوپر جب زبر لگایا جاتا ہے تو وہ با کی آواز دیتا ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچنے سے پھر الف کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ پے کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پا کی آواز دیتا ہے۔ تے کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کی ساؤنڈ تا کی نکلتی ہے۔ اسی طرح ٹے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو ٹا کی آواز نکلتی ہے۔ سے کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو سا کی آواز نکلتی ہے۔ جیم کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو جا کی آواز نکلتی ہے۔ چے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو چا کی آواز نکلتی ہے۔ خے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو ہا کی آواز نکلتی ہے۔ خے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو خا کی آواز نکلتی ہے۔ دال کے اوپر جب زبر کا استعمال ہوتا ہے تو دا کی آواز نکلتی ہے۔ دال کے اوپر جب زبر کا استعمال ہوتا ہے تو ڈا کی آواز نکلتی ہے۔ زال کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو زا کی آواز نکلتی ہے۔ رے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو را کی آواز نکلتی ہے۔ ڑے کے اوپر جب زبر کا استعمال کرتے ہیں تو ڑا کی آواز نکلتی ہے۔ زے کے اوپر جب زبر کا استعمال ہوتا ہے تو زا کی آواز نکلتی ہے۔ سین کے اوپر جب زبر کا استعمال ہوتا ہے تو سا کی آواز نکلتی ہے۔ یہ اوپر لال رنگ کی جو چھوٹی سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے زبر۔ زبر کے معنی ہوتے ہیں اوپر، جیسے زبردست، اسی سے بنا ہے زبردست۔ شین کے اوپر جب زبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو شا کی آواز نکلتی ہے۔
स्वाद के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो सा की आवाज़ निकलती है। द्वात के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं दा की आवाज़ निकलती है। तोए के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं ता की आवाज़ निकलती है। ज़ोए के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो ज़ा की आवाज़ निकलती है। आइन के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो आ की आवाज़ निकलती है। गैन के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो गा की आवाज़ निकलती है। फ़े के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो फ़ा की आवाज़ निकलती है। काफ़ के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो का की आवाज़ निकलती है। काफ़ के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो का की आवाज़ निकलती है। गाफ के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो गा की आवाज़ निकलती है। लाम के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो ला की आवाज़ निकलती है। हिंदी के हरूफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। मीम के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो माँ की आवाज़ निकलती है। नून के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो ना की आवाज़ निकलती है। वाव के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो वाह की आवाज़ निकलती है। हे के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो हा की आवाज़ निकलती है। लाम अली ज़बर ला, ये ला की आवाज़ निकलती है। इसमें लाम अली के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल होता है। हमज़ा के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो वही आवाज़ निकलती है जो अलिफ़ की निकलती है, आ। ये के ऊपर ये दो हैं, ये छोटी है और बड़ी है, इन दोनों के ऊपर जब ज़बर का इस्तेमाल होता है तो दोनों में से या की ही आवाज़ निकलती है। तो अज़ीज़ तलबा, अभी आपने देखा कि जब हम मुख्तलिफ़ हरूफ के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो उस हर्फ से क्या आवाज़ निकलती है, यानी क्या साउंड देता है वो हर्फ। अब हम देखेंगे कि जब हम दो मुख्तलिफ़ हरूफ को ज़बर के ज़रिए से मिलाते हैं तो उसको क्या पढ़ा जाता है। जैसे आप इस लफ्ज़ में देख रहे हैं, ये इधर नून की मुख्तसर शक्ल है यानी मिलमा शक्ल, और ये इसके आगे लाम है। नून को लाम के ज़रिए से नून को लाम से ज़बर के ज़रिए से मिलाया गया है तो ये पढ़ा जाएगा नून लाम ज़बर नल। इसी तरह ये है और इसके आगे ये लाम है, इसको ज़बर के ज़रिए से जब हम मिलाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम हे लाम ज़बर हल। इसके आगे अलिफ़ और बे को जब ज़बर से मिलाते हैं ज़बर के ज़रिए से तो उसको पढ़ा जाता है अलिफ़ बे ज़बर अब। इसी के आगे दाल, दाल बे ज़बर दब, रे बे ज़बर रब, सीन बे ज़बर सब, काफ बे ज़बर कब, जीम बे ज़बर जब, मीम ते ज़बर मत, हे टे ज़बर हट, डाल रे ज़बर डर, दाल रे ज़बर दर, पे रे ज़बर पर, सीन रे ज़बर सर, कफ रे ज़बर कर। ज़बर के बाद अब मुख्तलिफ़ हरूफ के नीचे जब ज़ेर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस हर्फ से कैसी आवाज़ निकलती है, क्या साउंड देता है वो हर्फ। ये आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उर्दू का ये पहला हर्फ है अलिफ़, इसके नीचे जब हम ज़ेर लगाते हैं तो ये छोटी ई की आवाज़ देता है, यानी कि अलिफ़ ज़ेर ई। इसके आगे है बे, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, चे ज़ेर ची, हे ज़ेर ही, खे ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, डाल ज़ेर डी, जाल ज़ेर जी, रे ज़ेर री, रे ज़ेर ली, जे ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वा ज़ेर सी, दुआ ज़ेर दी, तोय ज़ेर ती, ज़ोय ज़ेर जी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फे ज़ेर फ़ी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, गाफ ज़ेर गी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हे ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, छोटी ज़ेर ये और बड़ी ये जो है इसके नीचे जब ज़ेर का इस्तेमाल होता है तभी ये की आवाज़ देता है। अब जब दो हरूफ को हम ज़ेर के ज़रिए से मिलाते हैं तो वो इस तरह पढ़ा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहला हर्फ है अलिफ़, उसके बाद में है सीन। अलिफ़ को जब हम सीन से ज़ेर के ज़रिए से मिलाएंगे तो वो अलिफ़ सीन ज़ेर इस पढ़ा जाएगा। काफ सीन ज़ेर किस, जीम से सीन ज़ेर जिस, अलिफ़ नून ज़ेर इन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल लाम ज़ेर दिल, नून बे ज़ेर निब, पे टे ज़ेर पिट, चे ते ज़ेर चित, सीन लाम ज़ेर सिल, बे लाम ज़ेर बिल, गाफ रे ज़ेर गिर, दाल काफ ज़ेर दिक, गाफ नून ज़ेर गिन, नून लाम ज़ेर नील, मीम लाम ज़ेर मिल, पे सीन ज़ेर पिस, हे लाम ज़ेर हिल। तो ये हुआ ज़ेर का इस्तेमाल। अज़ीज़ तलबा, ज़ेर के बाद हम देखेंगे
कि पेश किसी हुर्फ के ऊपर जब लगाया जाता है तो उसकी साउंड क्या होती है, क्या आवाज़ आती है उस हर्फ के ऊपर पेश लगाने से। पेश भी ज़ेर की तरह ऊपर ही लगाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग का जो एक छोटा सा वाव की शक्ल का समझ सकते हैं इसको, तो ये जो अलामत है ये पेश कहलाता है। तो ये अलिफ़ के ऊपर जब लगाया जाएगा तो ये अलिफ़ पेश ऊ पढ़ा जाएगा, छोटा ऊ की आवाज़ देगा। बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रे पेश रू, रे पेश रू, जे पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, द्वाद पेश दू, तोय पेश तू, जोय पेश जू, ऐन पेश ऊ, गैन पेश गू, फे पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हे पेश हू, हमज़ा पेश ऊ। ये हमज़ा जो है ये अलिफ़ की ही आवाज़ देता है, हमज़ा और अलिफ़ की एक ही आवाज़ होती है। ये छोटे ऊ की आवाज़ निकलेगी यहाँ पर, और ये छोटी ये और बड़ी ये इनकी भी एक ही आवाज़ होती है। ये छोटी ये हो या बड़ी ये हो, ये पेश यू पढ़ा जाएगा। अब आप देखिए कि जब पेश के ज़रिए से दो हरूफ को मिलाया जाता है तो किस तरह से उसको पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये चे की मुख्तसर शक्ल है, यानी मिलवा शक्ल चे की, इसके आगे पे है, और पेश के ज़रिए से इसको हम मिलाएंगे तो चे पे पेश चुप पढ़ेंगे इसको। पे टे पेश पुट, रा रे काफ पेश रुक, हे काफ पेश हुक, पे लाम पेश पुल, काफ लाम पेश कुल। देखिए जब काफ मिलवा शक्ल में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। यह आपको मिलवा शक्ल में जब हमने बताया था तो वहाँ आपने देखा होगा, काफ लाम पेश कुल, गैन लाम पेश गुल, अलिफ सीन पेश उस, दाल मीम पेश दुम, ते मीम पेश तुम, गाफ नून पेश गुन, अलिफ नून पेश उन, सी नून पेश सुन, चे नून पेश चुन, गाफ ले पेश गुड़। तो ये हुई पेश का इस्तेमाल। अज़ीज़ तलबा, अब एक लफ्ज़ होता है दो चश्मी है। ये दो चश्मी है, यहाँ पर आप लाल रंग से लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको दो चश्मी है कहते हैं। ये दो आँखें सी होती हैं, चश्म आँख को कहा जाता है उर्दू में, तो ये दो आँखें सी मालूम होती हैं, इसलिए इसको दो चश्मी है बोलते हैं। होता ये भी है ही है, लेकिन इसको दो चश्मी है कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ में मिलाकर जब लिखा जाता है तो उस हर्फ के साथ मिलाने पर क्या आवाज़ देता है ये यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। ये बे की मिलवा शक्ल है और इसके साथ में ये दो चश्मी है को मिलाया गया है, तो ये मिलाने के बाद में इस तरह से लिखा जाता है इसको, और ये भे की आवाज़ देता है। इसके बाद में ये पे और दो चश्मी है मिला के इस तरह लिखा जाता है, ये फे की आवाज़ देता है। ते के साथ में दो चश्मी मिलाकर थे की आवाज़ देता है, और टे के साथ में जब हम दो चश्मी है मिलाते हैं तो वो ठे की आवाज़ देता है। और जीम के साथ में जब दो चश्मी मिलाया जाता है तो झे की आवाज़ देता है। चे के साथ में दो चश्मी है छे की आवाज़ देता है। दाल के साथ में दो चश्मी है धे की आवाज़ देता है, और डाल के साथ दो चश्मी है ढे की आवाज़ देता है। काफ के साथ दो चश्मी है खे की आवाज़ देता है। गाफ के साथ दो चश्मी है घे की आवाज़ देता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि दो चश्मी है वाले हरूफ को जब हम दूसरे हरूफ के साथ में मिलाते हैं तो वो किस तरह से पढ़ा जाएगा। यहाँ हम ज़बर और ज़ेर और पेश तीनों ही मिसालें देकर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपने पढ़ा था घे, तो ये यहाँ तक आप घे पढ़ेंगे इसको गाफ के साथ दो चश्मी मिला के, और ऊपर इसके है ज़बर और इसको आगे रे कहते हैं, तो घे रे ज़बर घर पढ़ेंगे इसको, भे रे ज़बर भर। इसी तरह ये फे है, लाम के साथ में जब इसको मिलाएंगे ज़बर के ज़रिए से तो फे लाम ज़बर फल, और झे लाम ज़बर झल, फे टे ज़बर फट, और थे का ज़बर थक, ढे का ज़बर ढक, छे ते ज़बर छत, और ये थे है, ते के साथ में दो चश्मे मिलाने पर थे की आवाज़ देगा ये। और ये आगे मीम बना हुआ है, थे मीम ज़बर थम, और थे नून ज़बर थन। अब ज़ेर के साथ में देखिए फे रेज़र फिर,
और ये भे है, भे के साथ में ड़े, तो इसको ज़ेर के ज़रिए से मिलाएंगे तो भेड़ ए ज़ेर भेड़, खे लाम ज़ेर खिल, छे लाम ज़ेर छिल, घे सीन ज़ेर घिस। अब पेश के साथ में देखिए दो चश्मी है और हरूफ मुख्तलिफ, छे काफ पेश छुक, छे पे पेश छुप, खे लाम पेश खुल, घे लाम पेश घुल, भे नून पेश भुन, घा घे सीन पेश घुस, भे सीन पेश घुस। तो इस तरह से दो चश्मी है का इस्तेमाल आपने ये देखा आज। अज़ीज़ तलबा, आपने हरूफ में उर्दू के जब हरूफ सीखे थे तो उसमें एक लफ्ज़ एक हर्फ आया था नून। नून ऐसा होता है और इसमें नुक्ता होता है। अब एक नून ऐसा होता है जिसमें नुक्ता नहीं होता, इसे नून गुन्ना कहते हैं। ये नून गुन्ना कहलाता है, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ लाल रंग से देख रहे हैं। तो इस नून गुन्ना का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये आप यहाँ पर देखेंगे। मीम अली ज़बर माँ नून गुन्ना, ये क्या पढ़ा जाएगा? माँ। ये ना का बिंदी जो होती है यहाँ जो जिस लफ्ज़ में होती है उसके आगे नून गुन्ना लगा के ये माँ पढ़ा जाएगा। इसके आगे है अली ज़बर हा नून गुन्ना हाँ, लाम वापिश लू नून गुन्ना लूँ, दाल ये ज़ेर दी, दाल ये ज़ेर दे नून गुन्ना दें, मीम ये ज़ेर में नून गुन्ना में, है ये ज़ेर है नून गुन्ना हैं। अब आगे देखिए तीन चार हरूफ के साथ में ये नून गुन्ना किस तरह से पढ़ा जाएगा। ये ज़बर या है अली ज़बर हा, यहाँ नून गुन्ना यहाँ, वाव ज़बर वा है अली ज़बर हा वहा नून गुन्ना वहाँ, काफ ज़बर का है अली ज़बर हा नून गुन्ना कहाँ, नून ज़बर ना है ज़ेर ही नहीं नून गुन्ना लगाने के बाद में ये नहीं पढ़ा जाएगा। काफ ज़बर का है ज़ेर ही कहीं नून गुन्ना कहीं। जब नून गुन्ना लगा देते हैं तो वो फिर नाक से आवाज़ निकलती है और वो ये नाक की बिंदी जो होती है वो लगती है उस लफ्ज़ में। पे अली ज़बर पा, वाव हमज़ा पेशू, पाऊ नून गुन्ना पाऊँ, मीम अली ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मामू नून गुन्ना मामू, गाफ अली ज़बर गा, हमज़ा वाव पेशू गाओ नून गुन्ना गाओ, अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा ये ज़ेर आए नून गुन्ना आए, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मीम ज़बर अम, मीम अली ज़बर मा नून गुन्ना अम्मा। अब यहाँ देखिए चे अली ज़बर चा नून गुन्ना दाल साकिन चांद, सीन अली ज़बर सा नून गुन्ना पे साकिन सांप। ये नून गुन्ना जो है ये मिला के जब लिखते हैं तो इसमें नून का नुक्ते का इस्तेमाल होता है और ये नून गुन्ना ही पढ़ा जाता है। दाल दाल अलिफ ज़बर दा नून गुन्ना ते साकिन दांत, अलिफ मद ज़बर आ नून गुन्ना खे साकिन आँख, गाफ ज़ेर गे नून गुन्ना दाल साकिन गेंद, अलिफ वापिश ऊ नून गुन्ना टे साकिन ऊँट, मीम वापिश मू नून गुन्ना गाफ साकिन मूंग, लाम वापिश लू नून गुन्ना गाफ साकिन लौंग, से सीन वापिश सो सीन वाज सौ नून गुन्ना फे साकिन सौफ, फे और नून गुन्ना सीन साकिन फस। इसी तरह से ये है और ये नून गुन्ना ही है सीन साकिन हंस, हंस जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है नून गुन्ना के साथ में उर्दू में। तो अज़ीज़ तलबा, ये उर्दू की कुछ बुनियादी बातें आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताई गई। अब इंशाअल्लाह ताला हम अगले वीडियो में आपको टेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। और इस तीनों वीडियो में या अगले वीडियो में भी आपको अगली क्लास में अगर कोई बात कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मालूम कर लीजिए। शुक्रिया।